لوگ جو ہے وہ میٹنگ کی مختلف جگہ پہ مصروف ہے تاکہ ہمارا جو جائز مطالبہ ہے اس کو جو ہے اسی طریقے سے جو ہے آگے بڑھایا جا سکتا ہے. تو اس وقت جو صورت حال ہے میں آپ سے تھوڑی سی ویسے تو پریس صاحب کے پاس ہے لیکن میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر سکتا ہوں. وہ اس طرح ہے کہ 1999 میں ہمیں جو پیٹرولیم کے جو پروڈکٹس تھے اس کے اوپر 5% گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا کہ جو بھی پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمت ہوگی اس کا 5% جو ہے وہ ڈیلرس کو اس کی کمیشن کی. وہ سلسلہ چلتا رہا. پھر جو ہے جب پرائسز بڑھنا شروع ہوئی تو وہ مارجن چونکہ 5% ان کو زیادہ لگتا تھا تو انہوں نے اس کو فکس پہ کر دیا. تو یہ فکس پہ ہمارے جھگڑا ہوتا تھا گورنمنٹ سے. گورنمنٹ جو ہے اگر ویبسائٹ کرتے نہیں کرتے گورنمنٹ مانگ کرتی کبھی ہم کوشش کرتے اسی طرح کیونکہ برکوش پیٹرولیم ایک ایسی کمیڈیٹی ہے کہ اس کے بغیر پورا ملک جو ہے وہ پڑ جاتا ہے. اور اس وجہ سے ہم کوشش کرتے تھے کہ ایسا وہ کرنا ہے کیونکہ اس سے عوام کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم عوام کو بھی تکلیف دینا نہیں چاہتے تھے. لیکن جب آپ کہتے ہیں انسان گورنمنٹ بھیجن میں ہونے بات ہے. اب صورت حال ایسے ہوا کہ پچھلی گورنمنٹ نے ہمیں جو مارجن دیا تھا وہ انہوں نے فکس کر دیا تھا ہمارا. ہم نے ان سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں 5% کو دوبارہ فکس کر دیں لیکن انہوں نے ہمیں پرسنٹیج کی بجائے روپیز 6 روپئے میں جو ہے وہ فکس کر دیا. تو 6 روپئے کا مارجن اس وقت جو پیٹرولیم کا ریٹ تھا اور آج کا پیٹرولیم کا جو ریٹ ہے ہمارا مارجن وہی ہے جبکہ ریٹ جو ہے بہت بڑھ گیا. اب ریٹ صرف پیٹرولیم آئٹم کا نہیں بڑھا بلکہ اس کے ساتھ جو ہے نا بجلی کا ریٹ بھی بڑھ گیا, اس کے ساتھ لیبر کا ریٹ بھی بڑھ گیا, اور ایکسپینسز جتنے ہیں وہ سارے بڑھ گئے ہیں. تو وہ اب جو بالکل جو ہے اب بارے میں نہیں ہے. تو اس وجہ سے مجبوری ہے کہ ہمیں جو ہے یہ اس طرف آنا پڑ رہا ہے. ہم اب بھی نہیں چاہتے لیکن گورنمنٹ ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرے اور ہماری جو جائز مطالبہ ہے وہ پورا کرے. انشاءاللہ ہمیں تو خوشی ہوگی کہ ہمارے بزنس چلتے ہیں لیکن مجبوراً جو ہے ہمیں یہ کام کرنا پڑتا ہے. ایک اور مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ پہلے آپ کا جو یہ بینک ریٹ تھا جو مارک اپ تھا وہ مارک اپ جو تھا سنگل ڈیجٹس میں تھا. پھر اس کے بعد تھوڑا سا زیادہ ہو. اس وقت جو ہے ایکسٹریم پہ ہے 22% جو ہے آپ کا مارک اپ ریٹ ہے. تو 22% سے 22% یہ ہوتا ہے. اس کے اوپر جو انشورنس وغیرہ وہ ساری چیزیں شامل کی جائیں تو یہ 25-26% سے اوپر چلے جائیں. آپ مجھے بتائیں کہ وہ قرضہ لے کر آپ جو ہے اپنا کاروبار, کیونکہ اتنا پیسہ تو کسی کے پاس نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا ٹرن اوور, کیونکہ ایک لیٹر جو ہے آپ 250 روپئے سے اوپر ہے. تو آپ نے اگر تھوڑا بھی اپنا وہ جو ہے کاروبار کو تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے تو آپ کہیں نہ کہیں سے قرضہ لینا پڑے گا. تو آپ 25-26% جو ہے مارک اپ کے اوپر قرضہ لے کر تو کس طرح آپ اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں. تو یہ ایک ریزن یہ بھی ہے. تو اس لیے ابھی ہمارا مطلب نکال رہا ہے کہ ہمارا یہ جو مارجن ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ زیادہ کریں کم کریں, پرسنٹیج پہ لگا دیں 5% ہمارا کر دیں. اگر قیمت کم ہوتی ہے تبھی 5% ہمیں دیں, اگر زیادہ ہوتی ہے تب نہ ہمارا. تو یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے. اور اس لیے اگر حکومت جو ہے ہمارا یہ مطالبہ ہم سے بات نہیں کرتی یا ہمارے مطالبے پہ غور بھی نہیں کرتی تو ہمیں مجبوراً ہڑتال پہ جانا پڑ رہا ہے. تو اس لیے ہمارے جو سینٹرل ہماری ایسوسیشن کے جو چیئرمین ہیں سمی خان صاحب, انہوں نے 22 جولائی کو صبح 6 بجے سے اسٹرائک کی کال دی ہے. یہ اسٹرائک کی کال بھی جو ہے نا انشاءاللہ ابھی تک تو اس کا کوئی مدت محسوس نہیں ہے, اس لیے کہ جب تک گورنمنٹ جو ہے ہمارے مطالبات پہ غور نہیں کرتی, نیگوشیٹ نہیں کرتی, اس لیے اپنی نتیجے پہ نہیں آتے تو یہ جو ہڑتال ہے یہ چلتی رہے گی. دوسرا بڑا مطالبہ جو آپ سب لوگوں کے لیے مسئلہ ہے اور ہمارے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی ہے, وہ ہے جو ہمارا جو پیٹرولیم آئٹمس جو ایران سے پیٹرول اسمگل ہو کے آ رہا ہے وداؤٹ ڈیوٹی وداؤٹ اینی ٹیکس. تو اور پھر اس کی کوالٹی بھی جو ہے وہ کمزور کوالٹی ہے. آپ اس کو دیکھیں تو اس میں بو وغیرہ آ رہی ہوتی ہے, خاصی اسمیل ہوتی ہے اور انجن کا بڑا ہوتی ہے. تو جو کمپنی کے پمپ ہیں جیسے پی ایس او, شیل ہے, ٹوٹل ہے, وہ ہے, جو ریپیوٹیڈ کمپنی ہے ان کے پمپس جو ہیں ان کو تو مجبوراً ان کمپنی سے پیٹرول لینا پڑتا ہے.
जबकि यहाँ पूरे खेती जो उधर जो आप देखें तो दबा स्टेशन चले हुए हैं। दबा स्टेशन का वो रजिस्टर्ड है, ना उबर से रजिस्टर्ड है, ना एक्सप्लोसिव से रजिस्टर्ड है, ना ही किसी इनकम टैक्स में देते हैं, ना ही कोई और रजिस्ट्रेशन है। बस वो डबल स्टेशन है और ईरान का जो स्मगल्ड माल है वो यहाँ तक के पास आ जाते हैं और वो ये जो है बेच रहे हैं, जिससे हमारे जो रेगुलर फॉर्म्स हैं उनकी परसेंट जो सेल है वो कम होकर 30% कम हो गई। यानी पहले अगर कोई 100 लीटर बेच रहा था तो अब 70 पे आ गया। एक तो महंगाई हो गई है, दूसरा जो है वो मार्जिन जो है उसका हिसाब अगर देखें तो परसेंटेज के हिसाब से वो 2% से भी कम हो गया। और तीसरा जो है मार्केट का रेट भी बढ़ गया है और ये डबल स्टेशन जो है उसकी वजह से सेल भी कम हो गई। जब सेल भी आपकी कम हो जाए तो फिर किसी सूरत में आपका भाड़ा नहीं करता। तो इसलिए हमारा होता है कि हुकूमत का रेवेन्यू जो है ना इसमें ज़ाया हो गया है। तो हुकूमत को चाहिए कि वो इन डबल स्टेशन की पूरी तरह जो है ना देखे, इनकी जो है पूरी तरह सर्वे करे और इनसे जान हमारी जान भी छुड़ाए और भी जान बचाए। तो ये हमारा दो मुतालबात है और इसके अलावा और तो छोटे मोटे हैं लेकिन और भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये दो हमारे मुतालबात हैं आपके सामने हमने रख दिए हैं। तो हमारे सेक्रेटरी साहब अगर आपसे बात करना चाहते हैं हमारे तफसील तो पूरी तरह मुफ्ती साहब ने तफसील में बात कर ली और ये मार्जिन के सिलसिले में और जो इसके सिलसिले में अभी तकरीबन आधे घंटे पहले हमारे जो मरकजी चेयरमैन साहब है समी खान साहब उसने कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उसने मुद्दे की हड़ताल की कायदे दी। पिछली दफ़ा भी आप लोगों को याद हो हम यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और 25 नवंबर 2021 को हमने कामयाब हड़ताल की थी और वो गवर्नमेंट ने अपने कोर्ट में ठेक दिए थे क्योंकि हमारे मुतालिबात जायज़ थे। अभी हमारा सुबह लीड उधर सिंध लीड कर रहा था लेकिन सबसे ज़्यादा जो पेट्रोल पंप बंद थे जो हड़ताल कर लिया थी वो हमारी पख्तूनख्वा की थी जो 90% थी। तो इंशाल्लाह अभी भी हम अपने जो मरकज़ी चेयरमैन है समी खान साहब उसको मायूस नहीं करेंगे और हमारा सुबह मुताब पे होगा और जब तक हमारी ये दो मुतालबात नहीं माने जाते उस वक्त तक हम गैर मुय्यना मुद्दत तक हड़ताल पे जाएंगे। ये हमारे जायज़ मुतालबात हैं। ये पहले हम किस ज़माने में ये 5% पे फिक्स था उसको मार्जिन हमारा बनता था ₹1.50 उस पर गवर्नमेंट हमसे 10% विथहोल्ड टैक्स लेती थी तो 15 पे 100 कट जाते थे, हमें ₹1 पे से मिल जाते थे। ये फिर रेट बढ़ता रहा तो जब हमारा मार्जिन बढ़ गया तो गवर्नमेंट ने कम कर दिया। अभी हम गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि हम हर साल या हर 6 महीने बाद आते हैं और कमीशन बढ़ा दें। अगर ये हमारा फिक्स कर दें 5% पे, अगर माल रेट नीचे आएगा तो हमारा मार्जिन कम होगा, ऊपर जाएगा तो हमारा मार्जिन बढ़ेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है कि तनख्वाहें कहाँ तक पहुँच गई है। तो बाद ज़्यादातर लोगों के लिए ज़मीनी लीज भी ली है, फिर उन्होंने उसी लिए हैं पंप बनाए हैं, लीज के पैसे देना, फिर सोशल सिक्योरिटी के पैसे देना, एक्साइज के पैसे देना, एफडीआर को पैसे देना, कंपनियों को फ्रेंचाइज फीस है, बाकी टैक्सेस है। तो इस पर गुजारा करना बहुत मुश्किल है। अभी हमारे एक दोस्त से कल वो बात कर रहा था कि मेरे 5 पेट्रोल पम्प है और हर पेट्रोल पम्प तकरीबन एवरेज के हिसाब से 2,80,000 पर मंथ लॉस भी जा रहा है। तो अभी इंशाल्लाह पिछली दफ़ा इस दफ़ा भी हमारी हड़ताल कामयाब होगी और हाँ सर भी बहुत प्रेशर है हड़ताल का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस न करने की कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस न करें और अगली गवर्नमेंट पे छोड़ दें। उसने कहा कि हम नहीं चल सकते, एक दिन की मजीद नहीं चल सकते और हमारा तहबा उसके सामना बचाना है। बाकी जो आप लोगों के दोस्तों के कुछ क्वेश्चन हैं कहीं वो कर लें। हम करेंगे कि 22 तारीख को हड़ताल है, आप लोग अपने टिकट फुल कर के सनद को क्या हो सकता है जी, मतलब पेट्रोलियम के सनद हाँ पेट्रोलियम के साथ तो ऑलरेडी नुकसान हो रहा है। ईरानी तेल आ रहा है, ठीक है, स्मगल होकर पाकिस्तान के रास्ते पे आ रहा है, वहाँ पे कोई ड्यूटी पे नहीं होती। पेट्रोल पे 55 रुपये पेट्रोलियम लेवी है, डीजल पे 50 रुपये पर लीटर लेवी है, ये वहाँ पे जमा नहीं होती। सेल टैक्स है, कस्टम ड्यूटी 10% है, वो जमा नहीं होती। वो तो खुलेआम आ रहा है, यहाँ बिकता है
सर इसमें मसला क्या है, आलमी मार्केट में तेल एक कीमत पे और यहाँ आप लोग दूसरी कीमत पे देते हैं, इसके डबल पे देते हैं। कौम के हवाले से कुछ नहीं जानते। ये इंटरनेशनल रेट्स होते हैं, ये रोज़ाना का इंटरनेशनल रेट क्रूड ऑयल का लिया जाता है और रोज़ाना का ये फिनोमेना किसी को समझ नहीं वो इस तरह है कि देखिए हमारा जो डीलर्स हैं जिसकी हम नुमाइंदगी कर रहे हैं, ये डीलर्स जो है इसकी परसेंटेज फिक्स है। हम कीमत मुकर्रर नहीं करते, कीमत जो है वो ओगरा मुकर्रर करती है और ओगरा और फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है वो जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री मिल के कीमत तय करते हैं कि भाई पेट्रोल पंप पर आपने इस रेट में तेल बेचना है। हम डीलर्स जो है ना सिर्फ अपनी जो कमीशन है जिसके लिए हम आए आज, हम उस कमीशन का जो परसेंटेज है कि भाई हमें जो हम जो चीज़ बेच रहे हैं, हमें जितना भी हम बेचेंगे हमें उसमें आपको परसेंटेज हमारी रखे 5%, ठीक है ना, सेल का। लेकिन जो गवर्नमेंट है वो इसकी बजाय कि ये हमें मार्जिन प्रॉपर दे, क्योंकि हम देखें जो लेबर का खर्चा है वो हमने बर्दाश्त करना, जो टैक्सेस हैं मुख्तलिफ तरह के वो हमने देने, ठीक है ना। और जो गवर्नमेंट की जितनी भी इदारे उन्होंने आके इंस्पेक्शन करनी है, तो जो डीलर है उसने उसको फेस करना है। तो ये बाकी जो रेट की फिक्सेशन है, क्योंकि ये डी रेगुलराइज नहीं है, ये रेगुलराइज है, तो इसलिए ये गवर्नमेंट जो है इसका रेट फिक्स करती है और बाकी जितनी भी पेट्रोल की लेवी है या जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट को जाते हैं, वो डीलर को नहीं जाते। डीलर को बस अपनी वो परसेंटेज मिलती है जो उसकी कमीशन। सर इसमें थोड़ा सा क्लेरिफिकेशन और भी मैं एडिशन करना चाहूँगा सर इजाज़त से, कि जो डीलर है उसके लिए कम कीमत फ़ायदेमंद है, क्योंकि जब कीमत कम होगी तो आप 100 रुपये की जगह 200 का डालेंगे, 10 लीटर की जगह 20 लीटर डालेंगे, तो मेरा तो पर लीटर कमीशन है। मेरी तो जितनी क्वांटिटी बढ़ेगी आप खुद देखिए, आप मार्केट को समझते हैं, जितनी चीज़ें महंगी हो जाती हैं उनकी सेल कम हो जाती है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि जितनी जितनी कीमतें बढ़ रही हैं उसके वजह से हमारा सेल डाउन होती है। मोटरसाइकिल वाला बेचारा वही फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये का तेल डाल रहा है, तो लीटर के हिसाब से तो मेरा तेल कम हो गया, क्योंकि कीमत बढ़ गई है, 300 रुपये लीटर हो गई है। तो अगर वो 100 रुपये का डालेगा तो काम है, अगर 200 होगा तो वो 100 का डालेगा, ज़्यादा पेट्रोल डालेगा। तो मुझे तो फ़ायदा उसी में है कि कीमत कम हो। सर ने बड़ा अच्छी तरह से क्लेरिफाई कर दिया कि हमारा कीमत से कोई ताल्लुक नहीं, हम भी आपकी तरह फैक्ट्री हैं, आपकी तरह हम भी एक फैक्ट्री है। फी लीटर कमीशन है, जो हमारा फी लीटर हमारा कमीशन होता है, जितने सेल ज़्यादा होगी हमारा कमीशन बढ़ेगा।